Bismillahirrahmanirrahim. And today the topic or the chapter we are going to study is chapter number 6 of the book, and the topic is analysis of one-dimensional problems. So हम क्या करेंगे इसके अंदर कि we will solve heat transfer problem by using a weighted residual method, or we will solve it by using minimum total potential energy formulation. Then we will analyze we will do some analysis about both the methods. So here we have, for example, we have a problem in which we have a fin and the heat is transferred through this fin. This is a one-dimensional problem, so we will assume that the heat will only transfer through x-axis along this x direction. So this is the periphery of the problem. This side is the tip. This is the tip of the fin. This is the base temperature, and the heat will start moving from this point towards the tip. So we will first on the first step, what we will do, we will divide this problem into 4 elements. So 1, 2, 3, 4. This is called discretization. So we have done the discretization. We have divided the problem into 4 elements and 5 nodes. So element 1, 2, 3, and 4, and there will be nodes, 5 nodes and 4 elements. So we have divided the problem into 5 nodes and 4 elements. So the modes of heat transfer, there will be 2 modes of heat transfer. One will be through conduction and the other will be through convection. So the modes of heat transfer is, the first one is conduction. So along the x-axis we will have conduction through this solid fin. Every cross-sectional area, just like the slices of bread, one slice will transmit the heat to the next slice, and the next slice will transfer the heat to the its next one. So इस तरह से heat जो है वो transfer होगी through conduction, और then we also have the heat transfer through convection. और जो periphery है, periphery से जो आपकी heat transfer होगी that will be through कन्वेक्शन. लेकिन कंडक्शन के थ्रू वाई डायरेक्शन में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम. सो कंडक्शन के में देयर विल बी हीट ट्रांसफर ओनली इन एक्स डायरेक्शन, but by convection the heat will transfer to the surroundings through the periphery of this fin, and also through the tip of the fin. जब आखिरी एलिमेंट में जाएगा तो कन्वेक्शन के थ्रू टिप से भी जो है वो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू कन्वेक्शन, एंड बाकी सारे एलिमेंट में द हीट विल ट्रांसफर थ्रू द पेरिफेरी. फाइनाइट एलिमेंट के एनालिसिस के अंदर जितने भी हमारे मेथड्स हैं, वेटेड रेजिडुअल मेथड हो या टोटल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मेथड हो या वी हैव डायरेक्ट मेथड, तो हम ये 5 जो हैं रूल्स लाजमी हर जगह अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्रिटाइज आवर प्रॉब्लम. On the second step, we assume an approximate solution. On the third, we develop an equation, or we call it a governing differential equation. On the fourth step, we assemble those equations and apply the boundary conditions. So once we have done discretization, now we will develop a governing differential equation. And we know, because in this problem it's a problem of a heat transfer, so there is conduction and convection. So we will use Fourier's law and Newton's law of cooling to develop our differential equation. So here we have developed the differential equation. We are not going into the details that how we have derived, because that is not the subject we are going to study. हीट ट्रांसफर के अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि हाउ वी कैन ड्राइव दीज इक्वेशंस. तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई. इन दिस हियर वी हैव द कंडक्शन टर्म एंड दिस इज द टर्म फॉर द कन्वेक्शन. Here K is the conductive heat transfer coefficient, A is the cross sectional area,
H is the convective heat transfer coefficient and P is the periphery. T is the temperature at any point, required point, and Tf is the temperature of the surrounding fluid. So we will simplify this equation and open the bracket. Here we have opened the bracket, so this equation will become like this. We can also reverse the signs to get this equation. Now if we want to further simplify this equation, here this in this equation, k is a constant, a is a constant, so we can replace both of these constant with a new constant, which is a single constant, c1. In the second term, h is a constant, p is a constant, right? P is the periphery of the fin, so it will remain constant, so we can replace it with another constant, c2, which is equal to minus hf. And in the third term, this h is constant, p is constant, and the temperature of the surrounding fluid will not change. It will remain constant. So the temperature of the surroundings is Tf, which is also constant. So in this all these three terms are constant, so we will put it equal to another constant, c3. तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके वी हैव written it in terms of C1, C2, C3. So this is a differential equation in a simplified form. Now once we have developed this differential equation, the next step is we will solve it by using weighted residual method, right? And before going into the method, let's do another step. For example, in this we have missed this second step and we have done the third step. We have developed an equation. We will come to the second step afterwards. Now we will see what are we are not going to apply the boundary condition, but we will look into the boundary condition. We will see what are the boundary conditions. We will apply the boundary conditions at the step number 5, and once we will assemble the equations. So here what we are going to do, we are going to look at the boundary conditions. So for example, here we have our problem in which we have, this is the base temperature at x is equal to 0. This is the tip where x is equal to L. So the first boundary condition is that, आपको याद होगा कि जब हमने वो प्रॉब्लम किया, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम किया, उसमें एट द बेस जहां से स्ट्रक्चर फिक्स होता है वहां पे डिफॉर्मेशन 0 होती है, ठीक है. जस्ट लाइक दैट इन दिस प्रॉब्लम वेयर द बेस where x is equal to 0, we know the temperature at that point. Let it be TB. So this is the first boundary condition, that at x is equal to 0, the temperature is equal to TB, anything known. So this is the first boundary condition, and this is the second boundary condition. Here we have the second boundary condition. Let me explain it. This is the heat transfer. So if the fin is long enough, ये जो आपकी फिन है अगर इतनी इसकी लेंथ हो, इट इज लॉन्ग इनफ कि एंड तक जाते जाते द सारा का सारा जो हीट लॉस है वो पेरिफेरी के थ्रू ही हो जाए, और एंड पे जाके जो टेम्परेचर है फिन का वो बराबर हो जाए सराउंडिंग के टेम्परेचर के. तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, फिन का और सराउंडिंग का, तो देयर विल बी नो हीट लॉस. So there is no, so this term is saying that there is no heat loss at the tip if the fin is long enough. अगर fin इतनी लंबी है कि सारी की सारी heat loss periphery से हो गई, तो there will be no heat loss from the tip. ये एक कंडीशन हो गई, या ये होगी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में, या ये अप्लाई होगी या ये अप्लाई होगी. इफ दैट fin is not that long enough, or there is heat loss from the tip. If there is a heat loss from the tip, then we will apply this condition. So this is equal to H, which is convection. We know that the heat loss from the tip is by convection. Here we have our problem. So जब टिप पे जो होगा, टिप पे जो heat loss होगी, that will be through convection.
और जब कन्वेक्शन होगी तो कन्वेक्शन में जो एयर है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट विद द पेरिफेरी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन कांटेक्ट है टिप के. तो दैट इज व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड द कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट विद द cross sectional area multiplied with the delta T, which is the difference of temperature of this tip and the surrounding. So here we have the temperature of the surrounding, which is TF. Temperature of the tip is TL. So this is the heat lost from the tip, which is given by HA delta T. So in the next step what we will do, we will assume, अब ये जो हमने छोड़ दिया था सेकंड स्टेप वो आप कर लेते हैं. We will assume an approximate solution. इसके लिए हम जो सोल्यूशन अज्यूम करेंगे वो हम जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर चुके हैं. आपको याद होगा कि हमने वी हैव डन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन इन विच वी यूज द शेप फंक्शंस. तो हम यही वाली इक्वेशन जो है वो यूज कर लेते हैं, वेयर वी नो दैट कि एस आई इज अ शेप फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज एक्स जे. फॉर्मूला जो होता है एस आई का वो होता है एक्स जे माइनस एक्स ओवर एल, एंड एस जे इज एक्स माइनस एक्स ओवर एल. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस अप्रोक्सीमेट इक्वेशन, और हम इसको जो है वो विल use this in the weighted residual method. So now we will solve this problem. Once we have developed the governing differential equation, we know what is our assumed solution. We will solve this problem by using weighted residual method. So what we do in a weighted residual method, we substitute an approximate solution into the governing differential equation. The approximate solution does not satisfy the governing differential equation exactly because it is an approximation. When we will substitute this approximation into the governing equation, it will not best fit into that equation, and there must be an error in it, right? So there must be an error or a residual in it, and we will remove that error by using weighted residual method. So we are going to solve it by weighted residual method. So this was our governing differential equation. When we put this approximate solution or approximate equation into our governing differential equation, then it does not remain equal to zero, right? There is an error, so it must be equal to an error. So this equation becomes equal to, so now I have replaced temperature with psi, T with psi, to make it more generalized. So this is equal to, so this equation have become equal to the residual. So this equation is the residual equation. So what we do in weighted residual method, we will apply a method, one of the methods of a weighted residual method, that is called Galerkin's method. In Galerkin's method, what we do, we take integration of the integration of this residual equation and multiply it with the weight function, which is a test function. We test it, or we put a weight function in it, and we put it equal to 0. So this is how it works. This is the integration of the test function multiplied with the residual, and here we have the derivative, and we will put it equal to 0. So this is our weighted residual equation. Now we for an element, for example, here we have an element. In this element we have, if we talk about one element, in each element we have two nodes. So we will make this equation for each node one by one. So first equation for the residual will be this. So this is the first equation we have made for. We have put the value of this residual equation here, and we have used SI as a test function or a weight function, because Galerkin has advised that we should use test function, the same test function which we use in an approximate equation. So in our approximate equation, आप देख सकते हो कि approximate equation के अंदर हमारा जो हमने जो यूज किया अपना
इस वेरिएबल के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो एस आई था, तो यही वाला जो है हम इस वेटेड रेजिडुअल मेथड के अंदर भी यूज करते हैं। यही मेथड हमने पहले भी अडॉप्ट किया था जब हमने वेटेड रेजिडुअल मेथड से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के अंदर से उठा के हम टेस्ट फंक्शन को पुट कर देते हैं इन आर रेजिडुअल इक्वेशन। तो इसी तरह इसलिए हम नोड आई के लिए और नोड जे के लिए हम रेजिडुअल इक्वेशंस बना लेंगे। सो व्हाट वी हैव डन, हमने ये इस वाले प्रॉब्लम इसके अंदर लिमिट्स एक्स आई से एक्स जे तक हैं और हमने टेस्ट फंक्शन की जगह पुट कर दिया, पहले एस आई पुट किया और उसके बाद हमने नोड जे के लिए हमने एस जे पुट किया और आर रेजिडुअल की जगह हमने ये सारी की सारी रेजिडुअल की जो इक्वेशन थी वो लिख दी और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। Now we will solve these two equations one by one. We will take the integration of these two terms and simplify these two terms one by one. So let's talk about the this first term of Ri. So here we have the term of Ri. जो अभी हमने देखी थी वही टर्म है। इस टर्म के अंदर हमारे पास you can see that here we have a second order derivative. So we will first of all convert it into a first order derivative because it is difficult to integrate a second order derivative. That is why we will first convert the second order derivative into a first order. So we will convert the second order derivative in the above equation into the first order derivative. But how we will do that? We will use a chain rule. In a chain rule in derivation, when there is a product of two things and we are taking a derivative of it, तो हम क्या करते हैं, एक को जो है बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस तरह जिसका पहले डेरिवेटिव लिया उसको बाहर निकाल लेते हैं और जिसका नहीं लिया था उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई द चेन रूल। यही चेन रूल यूज करते हुए हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ आप देख सकते हो, here we have टू, फॉर एग्जाम्पल दिस ए की जगह मैंने लिख लिया एस आई और बी की जगह लिख लिया डी साई ओवर डी एक्स। दिस इज आर थिंग जो हमने ये रिप्लेस करनी है। अच्छा, अगर आप देखो कि मैं वन बाय वन डेरिवेटिव ले रहा हूं तो इसको मैंने छोड़ दिया, यानी ए को मैंने छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो इट बिकम्स डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट में मैंने इस सेकेंड पार्ट को यानी बी को छोड़ दिया और फर्स्ट का ए का डेरिवेटिव ले लिया, तो इट इज डी एस आई ओवर डी एक्स। ना इसको हम इक्वेशन की साइड पे रहने देते हैं और ये जो हमारी टर्म है इसको हम इक्वेशन के उधर ले जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस वाज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो यहाँ पे था, इसको इक्वेशन के उधर ले आए तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, राइट। सो this second order derivative has converted into sum of two first order derivatives. Now we will put this into the equation number 1. Here we have the equation number 1, so we will put this value in equation number 1. So here we have our equation number 1. We are going to put the value of that second order derivative in this equation. So here we have put, ये दो वैल्यूज आ गई एक की जगह, बाकी दोनों वैसे ही आ गए। वी हैव मल्टीप्लाइड एस आई विद सी टू साई एंड वी हैव ऑल्सो मल्टीप्लाइड एस आई विद सी थ्री, और ये हमारे पास सारी। नाउ इन दिस टर्म यू कैन सी दैट वी हैव 1 2 3 and 4 terms. We will take integration, we will integrate these 4 terms one by one. So first of all, let's write them one by one, write the integration with them one by one. So this is the first term with the integration, right? So we have written the first term with the integration, and then with the second term we have done the integration, we have written the integration, and with this third term SIC2 psi we have written the integration, and with this fourth term SIC3 we have written the integration. Now we will integrate these terms one by one. एक एक को उठा लेंगे इनमें से और हम इनकी इंटीग्रेशन करते जाएंगे. So these are the 4 terms. इनमें से जो first term है वो आप देख सकते हो, this is the first term out of these, this term. इसकी सबसे पहले इंटीग्रेशन करने लगे हम. So here we have the first term, और इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो we will bring this C1
बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रल, एंड दिस इंटीग्रल इसके साथ आपके साथ ये पड़ा हुआ है डेरिवेटिव। जब कभी ऐसा हो कि इंटीग्रल के साथ उसके डेरिवेटिव पड़ा हो और दिस इज मल्टीप्लाइंग विद द एक्स, तो क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू ए। और अगर इसमें लिमिट्स हो, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव लिमिट्स, देन वी विल अप्लाई द लिमिट्स ओवर हियर एज वेल। यानी ये डेरिवेटिव विल बी कैंसल आउट विद द इंटीग्रल एंड वी विल बी लेफ्ट विद दिस ए टर्म। तो यही हम जो है इस इक्वेशन के अंदर करेंगे। वी विल कैंसल आउट दिस डेरिवेटिव विद इंटीग्रल, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो c1, और ये जो अंदर वाली ब्रैकेट वाला जो पोर्शन था एस आई डी साई ओवर डी एक्स, और ये हो गया लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट हो गया। इसको लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स लगाने का तरीका ये है कि पहले हम ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, फिर हम नीचे वाली लिमिट लगाएंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव अप्लाइड द लिमिट्स। एक्स जे, ये सारी की सारी टर्म एक्स जे के लिए, माइनस ये सारी की सारी टर्म एक्स आई के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एस आई की वैल्यू पुट कर देंगे। एस आई का फॉर्मूला जो होता है, हमें पता है कि एस आई का फॉर्मूला क्या है। तो ये जो एस आई, तो ये जो हमारे पास एक्स एस आई का फॉर्मूला है एक्स जे माइनस एक्स ओवर एल, ये हम जो है इसमें पुट कर देंगे। ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये एस आई की जगह हमने पुट कर दिया दोनों टर्म्स में। आफ्टर पुटिंग दैट हमारे पास ये इस तरह से आ गया। ये हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया एस आई का। Now when we will put this xj here in terms of in the place of x, तो xj minus x, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। Similarly in this, when we will put xi instead of x in this equation, तो xj minus xi, it will become equal to L. We know that xj minus xi is L. So L over L, this will be cancelled out, ये 1 रह जाएगा। तो ये हमारी टर्म बन जाएगी इट्स लाइक दिस। ये सारी की सारी टर्म जीरो हो गई। ये c1 ऐसे आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, L ओवर L यहाँ 1 आ गया, और वो मैंने मेंशन नहीं किया। और डी साई ओवर डी एक्स इसी तरह आ गया। इसको अभी हमने इस पे लिमिट नहीं लगाई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। So this is how we have simplified the first term. This was the first term. Now after integration of this first term, we are left with this small term. हम क्या करेंगे, जहां हमारे पास साई है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सबसे पहले। आपको याद है हमारी अप्रोक्सीमेशन जो है, जो अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, वो टेम्परेचर की टर्म्स में लिखी थी पहले, लेकिन यही हम साई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। साई इक्वल टू एस आई साई आई प्लस एस जे साई जे। सो ये सारी की सारी टर्म उठा के हम यहाँ साई की जगह पुट कर देंगे। तो जब हमने ये पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई, सिर्फ साई की जगह हमने ये टर्म उठा के पुट कर दी। Now we will replace the values of SI and SJ formulas जो हैं SI और SJ के। So here we have the formulas of SI and SJ, ये हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, और it will become this। SI और SJ के जो है formulas यहाँ पे हमने पुट कर दिए। Now we have to take the derivatives of this। इसके अंदर से हम x, what we will do in the next, we have to take the derivative of this term, the derivative of this term। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा साई आई था, it will be a constant value, और L it is also a constant value, तो उसको हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया। और ये जो एक्स जे माइनस एक्स बचा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे अब। इसी तरह इसमें साई जे विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, एल विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, उसको हमने ब्रैकेट से बाहर, डेरिवेशन से बाहर निकाल लिया, और वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ओनली। सो वंस वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, वी नो दैट एक्स जे इज अ कांस्टेंट, और एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा। सिमिलरली इन दिस एक्स आई इज अ कांस्टेंट, और एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे -1 डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे 1 डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस सारी की सारी टर्म की जगह माइनस लिख देंगे, इट विल बिकम माइनस साई ओवर एल, और इस सारी की सारी टर्म की जगह 1 लिख देंगे, तो इट विल बिकम साई जे ओवर एल। तो यू कैन सी दैट बाकी सारी चीज़ों को हमने नहीं छेड़ा, ये अभी वैसे ही हैं, इनको बाद में अभी डिस्कस करते हैं। और ये हमने रिड्यूस कर लिया, तो इट बिकम माइनस साई ओवर एल प्लस साई जे ओवर एल। Now all these four terms are constants. We can take these four terms out of the integration.
So here we have done it. We have taken these four terms out of the integration, और ये जो बाहर माइनस था C1 के साथ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके इनके साथ। ये वाले माइनस साई आई था, इट बिकम्स प्लस साई आई। ये प्लस साई जे था, इट हैज बिकम माइनस साई जे। और ये जो एल था, इनको कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया, तो इट बिकम C1 ओवर एल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, और ये आ गया आपके पास। नाउ दिस इज नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप इसमें, हम वी विल इंटीग्रेट दिस टर्म। अब ये इसके साथ डेरिवेटिव में पड़ा हुआ है, और तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विल जस्ट कैंसल आउट विद दिस इंटीग्रेशन, और एस आई जो है हमारे पास रह जाएगा विद इन द लिमिट्स। इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे एस आई की। सो हियर वी हैव द लिमिट्स फॉर द एस आई एक्स जे पे और एक्स आई पे। वी नो दैट अ शेप फंक्शन एट द corresponding node is 0, at the corresponding adjacent node is 0, and at the corresponding उसी नोड के ऊपर यानी एस आई की वैल्यू एक्स आई के ऊपर 1 होती है, और साथ वाली नोड के ऊपर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, और इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो ये है हमारे पास बन गया, ये सारी की सारी टर्म ऐसे ही आ गई। नाउ इट हैज, इसकी जगह हमने 0 पुट किया, इसकी जगह 1 पुट कर दिया। नाउ इट हैज बिकम, अभी मल्टीप्लाई कर दिए, -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस हमारा बाहर आ गया, -C1 ओवर एल, और ये उसी तरह आ गया साई आई और साई जे। सो दिस इज हाउ वी हैव रिड्यूस्ड दिस सेकेंड टर्म इनटू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो ये हमारे पास सेकेंड टर्म थी पूरी, इस सेकेंड टर्म को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो इस तरह से रिड्यूस कर दिया। इसी तरह हम जो है थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, बट मैं उसका डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट। ये दोनों जो पहली दो टर्म्स की थी उनकी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट थी, वो मैंने कर ली। नाउ आई लीव द इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑन यू पीपल। तो ये हमने छोड़ दी, कर ली इंटीग्रेशन थर्ड टर्म की। आफ्टर इंटीग्रेशन C2L साई आई ओवर 3 प्लस C2L साई जे ओवर 6, ये आफ्टर इंटीग्रेशन। तो इसकी मैं हिंट दे देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसमें, तो आप इसकी इंटीग्रेशन खुद करोगे। इसी तरह फोर्थ टर्म जो है वो हमारे पास, ये फोर्थ टर्म थी SiC3dx। जब इसकी इंटीग्रेशन की, इसकी इंटीग्रेशन और भी ज़्यादा आसान है। C3 is a constant, we'll just bring it out of the इंटीग्रेशन, और एस आई की जो है वो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, एस आई का फॉर्मूला पुट करेंगे। इट्स हिंट, एस आई का फॉर्मूला पुट करेंगे और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। आई एम सॉरी, आई एम नॉट लुकिंग, आई वाज नॉट लुकिंग इन द, सो दीज आर द थर्ड एंड फोर्थ टर्म। हमने चारों टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा हो गया रेजिडुअल एट नोड आई के लिए सिंप्लीफाइड। Similarly, we will simplify the residual equation for node J। इसी तरह चारों जो है टर्म्स को सॉल्व करते जाएंगे, और नोड J के लिए भी हमारी रेजिडुअल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। So once we have made the equations for residual of I and residual of J, we will write those equations in the matrix form। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ये हमने लिख दिया RI और RJ। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म जो आपने की थी, दिस इज द सेकेंड टर्म। अगर आप सेकेंड टर्म देखो, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। ये सेकेंड टर्म आप हो रहा कैसे आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो सेकेंड टर्म हमने जब ड्राइव की थी, तो इस तरह से ड्राइव की थी। इट वॉज C1 ओवर L साई आई माइनस साई जे। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप ऊपर वाली क्वेश्चन पढ़ो तो आप साई आई को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इट विल कम साई आई, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे आप साई जे से। तो ये आप देख सकते हो ऊपर वाली क्वेश्चन बन गई -C1 साई आई माइनस साई जे। इस तरह ये नोड जे के लिए जो है वो उल्टी क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास। इसके साथ साई आई के साथ माइनस साइन आ जाएगा, और साई जे के साथ प्लस साइन आ जाएगा। तो इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हमने जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी, here we have the third term। इस थर्ड टर्म में हमने ये 6 जो है वो C2L ओवर 6 बाहर निकाल लिया, तो पहली टर्म की जगह 2 रह जाएगा, राइट, और यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये हमने इसको जो है ना, ये C2L/6 बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, 2 psi i, यहाँ पे 2 psi i रह जाएगा, प्लस साई जे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साई जे रह जाएगा। तो अगर हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म लिखें तो ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 1 है, तो आप देख सकते हो 2 1 मल्टीप्लाइंग विद साई आई एंड साई जे। ये जो नीचे वाले 1 2 है, दिस इज फॉर नोड जे। इसी तरह हमने ये फोर्थ टर्म C3L/2 के लिए, दोनों नोड्स के लिए, कि हमारे पास आई और जे के लिए यही इक्वेशन आ रही थी, वो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी। Now we will put the residual equation. Now we will put this whole residual equation equal to 0, and we will put back the values of C1, C2 and C3 and psi. Psi की वैल्यू भी, जो psi की जगह हमने टेम्परेचर लिखा था, वो हम दोबारा वो जो है वो पुट कर देंगे, T वापस पुट कर देंगे। इसी तरह C1 की जगह KA, C2 की जगह -HP और C3 की जगह HP PF जो है वो पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। तो आप देख सकते हो -C1 की जगह मैंने KA पुट कर दिया, C1 की जगह भी KA पुट, इस तरह C2 की भी वैल्यू पुट कर दी -HP, C3 की वैल्यू पुट कर दी HP TF। So in this equation, this is the stiffness, this is the stiffness matrix, and this is the load. How we come to know that this is a stiffness matrix? Because it is being multiplied with Ti and Tj. ये Ti और Tj से multiply हो रहा है, so we know that जो है हमारे पास stiffness matrix वो variables के साथ multiply होती है, and here we don't have any variables, so this is a load matrix। ये हमारे पास एक load matrix आ गई है। सो अगर इसको हम इक्वेशन के उस साइड पर ले जाएं, या इन तीनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन के उस साइड पर ले जाएं, तो इट विल बिकम लाइक दिस। तो ये तीनों टर्म्स के साइन रिवर्स हो गए। नाउ यू कैन सी दैट इसका भी साइन रिवर्स हो गया, इसका भी साइन रिवर्स हो गया, ये इसका साइन रिवर्स हो गया, -HPL था यहाँ +HPL हो गया, और ये तीनों, इन तीनों को इक्वेशन के उस साइड पे ले गए, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन गई, स्टिफनेस एक साइड पे आ गई और लोड मैट्रिक्स वो दूसरी साइड पे चली गई। नाउ वी नो दैट इन दिस टर्म, दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स, दिस इज द फोर्स मैट्रिक्स, ये स्टिफनेस है। नाउ व्हाट इज दिस, ये इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। नाउ दिस टर्म इज फॉर द लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट के लिए है, हीट लॉस इन द लास्ट एलिमेंट। अगर हम लास्ट एलिमेंट में देखें, तो अगर लास्ट एलिमेंट में देखें जो टिप होती है वो दैट इज एट नोड जे। तो आई नोड पे, बिकॉज देर इज नो टिप, टिप तो आई नोड पे नहीं है, जे नोड पे है, तो हीट लॉस जो होगी टिप पे वो आई नोड से नहीं होगी, यानी ये जो हीट लॉस हो रही है दैट इज फ्रॉम द टिप, तो ये जे नोड पे होगी। तो हम आपको बाउंड्री कंडीशंस याद होंगी, तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस कि अगर जो है फिन इज लॉन्ग इनफ, तो ये जो KA/DT/dx है, दीज टर्म्स विल बिकम इक्वल टू 0। ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा अगर जो है फिन इज लॉन्ग इनफ। लेकिन जब दूसरी कंडीशन है कि इफ देयर इज अ हीट लॉस फ्रॉम द टिप, तो ये जो टर्म है ये इक्वल हो जाएगी HA∆T के। तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड वाला अप्लाई करते हैं, और इसमें आप जो है, क्योंकि जे पे टिप थी, आई पे तो वैसे हीट लॉस नहीं है थ्रू कन्वेक्शन, तो जो जे पे हीट लॉस है थ्रू कन्वेक्शन वो आ जाएगी HA∆T। यहाँ पे TL-TF था, तो ये L यहाँ पे वी हैव J, तो दिस विल बिकम TJ-TF। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन बाय ओपनिंग द ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन जाएगा HATJ -HATF। So we can simplify, we can write this equation in simplified form। 0 इसकी जगह लिख दी, 0 + 0 + 0 ऊपर वाली इक्वेशन में। नीचे वाली इक्वेशन में मैंने 0TI ऐड कर दिया, प्लस HATJ प्लस HATF। Now this will be equal to, इसको हम अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में वी कैन राइट इट लाइक 0 0 0 0 0 HA, एंड दीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद TI और TJ, TI और TJ से मल्टीप्लाई हो रहा है।
और ये बिकॉज देर इज नो टी आई एंड टी जे टर्म इन दिस, तो इसको हमने अलग से इसलिए लिख लिया 0 एंड HATF. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की जगह उठा के हम ये जो हमने अभी डराइव किया है बाउंड्री कंडीशन लगा के, तो वो हम पुट कर देंगे और इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. So here we have put this value of this term right here. So यहाँ पे हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे इस टर्म में तो इट विल बिकम लाइक दिस. बाकी सारी टर्म्स ये KA1 - 1 वाली टर्म ऐसे ही आ गई, ये HP वाली टर्म भी वैसे ही आ गई. अब ये 0 0 H वाली टर्म यहाँ पे आ गई और इस टर्म को हम इक्वेशन की उधर ले गए, ये HPTFL/2 के साथ. ये HPTFL/2 है प्लस 0H. So this whole there is no TI and TJ term in it. So this is a load matrix and these are the stiffness matrices. So it will be like this: stiffness matrix into the KX matrix will be equal to F matrix.